Bengaluru. Clean and green always go hand in hand. So these are totally green games, just to comply with the directions given by the Indian government. Okay, will she follow the directions of a coach? 94 kilograms, attempt number 2 for Tamanna. फिर अच्छा क्लीन तमन्ना का, बहुत अच्छा क्लीन, और ये कंसंट्रेट किया, अगला पैर थोड़ा आगे निकाला और पुश किया ओवर द हेड, और ये बहुत सुंदर क्लीन एंड जर्क तमन्ना की। इससे इनको काफ़ी बल मिलेगा और कंपटीशन में कुछ ना कुछ जरूर कोई ना कोई मेडल ले पाएंगी। She will push Tamanna to number 2 spot, and that will add a lot of pressure. That will put a lot of pressure on Ritu. अभी राधिका कटोच का स्टार्ट देखिए, 100 किलो से ऊपर, 107 किलोग्राम, काफ़ी लिफ्ट बाकी हैं। क्लीन किया, थोड़ी देर रुकी और फिर खड़ी हुई आसानी से। नाइस स्मॉल थॉमस, सुंदर प्रयास क्लीन एंड जर्क का, और छोटी सी जब देखा उन्होंने कि मैं सफल हुई हूँ तो स्माइल भी उन्होंने किया, और ये गुड लिफ्ट नाइस स्मॉल थॉमस की। Dhatri Palati, best lift in snatch was 75. The first attempt here in the clean and jerk was successful with 90. Now trying to lift 96. That will take her to 176 if successful. Represents AKNU, Andhra Pradesh. धात्री पालती का सुंदर क्लीन, और ये जर्क बिना कोई समय गंवाए, बहुत कम समय लिया और एकदम से ठक करके ठोक दिया जर्क। सुंदर प्रयास धात्री पालती का। Puneet Chandra Sahu making his way towards the bar. It's a men's 96 kg snatch. Bowing against the jury members. He failed in the first attempt of lifting 113 kg. Did it in the second one and holding for the third. It's the third and the final attempt of Puneet Sahu. Would be lifting 124 kg. Can he do it? Holding the grip tight, taking his time, lifts it, finding it difficult and backdrops the bar. Another failed attempt. So the final and the last attempt of 124 kg didn't go his way, Sanjay. Gurmeet in his second attempt, charging himself up. He's very energetic. He knows that how to get the flow of that energy. Goes for a snatch, holding the bar, taking his time, lifting it up. He's standing, shivering, and gets a white signal. थे महावीर वेट लिफ्टिंग के मेन और विमेन कैटेगरीज के 76 और 96 कैटेगरी के। सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी की जो आपने बात मेंशन की वो सरासर सही थी वो बात, और किस तरीके से दबदबा बनाया रखा मेंस 96 कैटेगरी में। वहीं पे अगर विमेंस की गर्ल्स की कैटेगरी में अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट का परफॉर्मेंस सराहनीय रहा महावीर। जी बिल्कुल, और एक नज़र डालते हैं कि जो मेडल सेरेमनी थी उसमें खिलाड़ियों के चेहरे पर कितना हर्षोल्लास था, क्योंकि जब इतना वजन उठाया है तो जो एक मेडल है जो आपके गले पे टंगता है वो बहुत ही हल्का और बहुत ही सुंदर लगता है। तीनों के तीनों मेडल विनर्स। The bronze medal goes to Naismol Thomas from University of Calicut, Kerala. She lifted 80 kilograms in the snatch category. The silver medalist Dhatri Palati from AKN University, Andhra Pradesh, with the 75 and 96. And there's the champion. There you see the regard of the podium, and then the gold medal around her neck. Swati Kishore, again from University of Calicut, Kerala, lifted 81 in snatch and 107 in clean and jerk. Puneet Sahu is standing there, just taking up all the appreciations from the spectators, from the support staff, and getting that bronze medal. And after a bronze, it's time for the silver winner. And we have Gurpreet Ral, who
lifted up a total of 290 kg from SPP SU. And here he is, the golden man who won the gold medal by lifting up 313 kgs in total. Vaishnav Thakur from the SPP UP. Literally a proud moment and showcasing his culture out as well. Winning a gold medal for his university. Very happy. Within और एक नज़र डालते हैं ग्राफिक्स के जरिए, आपको बताते हैं कि कौन से वो प्रतियोगी थे जिन्होंने अपनी अपनी कैटेगरीज में मेडल जीते हैं। खासकर अगर हम शुरुआत करें स्मृति महिलाओं की 76 केजी कैटेगरी में, तो कुछ देर पहले हमने आपको विजुअल्स बताए थे और अब हम आपको बताते हैं कि स्वाति जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट है उसने गोल्ड मेडल जीता। पलाटी जो अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के हैं उन्होंने सिल्वर जीता और नाइस्मोल जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट फिर से उन्होंने कांस्य पदक जीता। वहीं पर अगर हम पुरुषों की बात करें 96 किलोग्राम्स कैटेगरी में, तो सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से वैष्णव इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। वहीं गुरप्रीत ने जो कि बीबीएस यूनिवर्सिटी से हैं उन्होंने सिल्वर मेडल जीता और पुनीत ने जो कि KIIT यूनिवर्सिटी से हैं उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता। महावीर, एक और बहुत दिलचस्प डिसिप्लिन जो कि आज खेला गया वो था बॉक्सिंग का जी। वो भी बहुत दिलचस्प तरीके से खेला गया और जो महिलाएं और पुरुषों का जो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपना अपना दमखम लगा करके अपने अपने यूनिवर्सिटीज़ के लिए रिप्रेजेंट किया, अपना मुझे लगता है कि पूरा दमखम लगा करके अपने आप को रिप्रेजेंट किया, वो बड़ा ही सराहनीय और देखने योग्य था जी। इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ के खिलाड़ी ऐसे थे जो भारत के लिए पहले भी खेले हुए हैं, कुछ यहाँ पर अपसेट्स भी हुए क्योंकि जो नए उभरते बॉक्सर्स थे उन्होंने सही पंचेस लगाए। करीब 12 कैटेगरीज थी जिसके सेमीफाइनल मुकाबले आज खत्म हुए हैं, कल इनके फाइनल्स होंगे। लेकिन आज के हाईलाइट्स क्या रहे, डालते हैं एक नज़र। Would you then say that boxing as it was 30 years back, we'll talk about that somewhere in between as the bout starts here, the light flyweight between Aarti in the red corner and Pooja in the blue corner. My question is, at the end of this perhaps action, is that things have changed so much over the last 25 and 30 years. बिल्कुल, और यहाँ पर अब जो परिवर्तन की अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत समय से गेम में बहुत परिवर्तन आया है। But when you talk of the truly elite fighters who are able to incorporate auxiliary styles, ये देखिएगा जैसे ही वो स्लिप होती है उसी के बाद उनका राइट क्रॉस आता है, तो ये काउंटर अटैक की जो उनकी टेक्निक है, हालांकि उनके कुछ दिशाहीन प्रहार रहते हैं पर यहाँ पर पुशिंग करते हुए रेफरी द्वारा जरूर, ये देखिएगा none of them seem to be taking any chances here, Sanjeev. बिल्कुल सर, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज देखिए, शेल गार्ड हटा रखा है ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज में, रनिंग स्टाइल में भाग रही है और तारीफ करूंगा रेड कॉर्नर के मुक्केबाज की, उनको बिल्कुल पकड़ रही है, नजदीक जा रही है। तरीके से प्रहार स्ट्रेट जैब रेड कॉर्नर के मुक्केबाज का, ये देखिएगा जैसे ही वो स्लिप होती है उसी के बाद उनका राइट क्रॉस आता है, तो ये काउंटर अटैक की जो उनकी टेक्निक है, हालांकि उनके कुछ दिशाहीन प्रहार रहते हैं पर यहाँ पर पुशिंग करते हुए रेफरी द्वारा जरूर, ये देखिएगा बहुत सुंदर प्रहार, पीछे हट रही है ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज, ये उनके लिए नुकसानदेह है। मगर हाँ, टेक्निकली बहुत अच्छी है, एक जैसे ही पीछे जाती है या आगे बढ़ने लगती है तो एकदम पंच को खोलती है, ये कि उनकी अच्छी कार्यकुशलता है, खेल कौशल है। पर अगर बाउट की बात करें तो लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से बॉक्सिंग करें तो ज्यादा अच्छा होगा। If you watch the girl in blue, which is Pooja, she is a fast fighter, hands down and almost the exaggerated footwork. Slowly both of them stalking their opponent to retain the stance. Take the first step in any direction is going to be the move, with the foot already leading in that direction for either of them. As we come to the end of a wonderful display by both of them. ब्लू कॉर्नर, यहाँ पर एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ, यूनानिमस डिसीजन, पांचों जजेस को प्रभावित करने में कामयाब हुई, जबकि दिख रहा था बैक पैडलिंग कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, मगर जो जजेस का निर्णय है वो अंतिम निर्णय होता है, उनको स्टाइल ऑफ बॉक्सिंग उनका ज्यादा प्रभावशाली लगा।
महावीर, स्विमिंग भी एक बहुत ही जबरदस्त कैटेगरी थी। सुबह से शुरुआत हो गई थी वेट लिफ्टिंग के साथ ही स्विमिंग की भी। फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, चाहे इंडिविजुअल रिले की बात करें, खिलाड़ियों ने बहुत खूबसूरती के साथ अपना प्रदर्शन किया। और एक और नाम जो कि मैंने शुरुआत में बोला था, शिव श्रीधर का आज ये नाम उभर करके आ रहा है एज अ हीरो ऑफ द डे। कहीं ना कहीं 2 गोल्ड मेडल आज इन्होंने जीते और अगर 2 कल के मिला दें तो अभी तक इनके 4 गोल्ड मेडल हो गए हैं। वहीं श्रुति भाटेकर की अगर हम बात करें, उन्होंने भी 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। और खास बात अगर आपको याद हो और अगर हमारे व्यूअर्स को भी याद हो तो कल हमने पाटिल सिस्टर्स की बात की थी, जिन्होंने बिल्कुल जुड़वा बहने हैं, जिन्होंने कल 200 मीटर में गोल्ड और सिल्वर जीता। आज भी उन्होंने 50 मीटर में गोल्ड और सिल्वर जीता है। एक नजर हाइलाइट्स पर डाल लेते हैं। The national record, Sergeant Prakash, 156.38 at Rome, June 21. World record, Christoph Milak. Michael Phelps at one time, Laszlo Czech, Hungary. Takeshi Matsuda, Athens Michael Phelps, Takashi Yamaduna, Stephen Paring. And here we are now, London Charles Leclerc. Michael Phelps was pushed to second. Takashi Matsuda. The fly is the peak of the butterfly is faster than that of the front crawl due to the synchronized pull push with both arms and legs. काफी बढ़त ले चुके हैं इस समय आर्यन पंचाल, 18 वर्षीय खिलाड़ी। आर्यन पंचाल नंबर 4 पर और उसके पीछे काफी दूर अगर देखा जाए तो लेन नंबर 8 में है राज रेलेकर, जैन यूनिवर्सिटी के, जो कि स्थानीय खिलाड़ी हैं। क्या यहाँ पर रजत पदक पर कब्जा कर पाएंगे? आर्यन पंचाल को कोई नहीं पकड़ पाएगा। गुजरात यूनिवर्सिटी के स्वर्ण पदक की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए आर्यन पंचाल, ये देखिए किस तरीके से अंडर वाटर स्क्रीन से आप देख रहे हैं, और इसके साथ टच किया। आर्यन पंचाल ने स्वर्ण पदक हासिल किया, दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस समय लेन नंबर 8 में राज रेलेकर ने, और तीसरा स्थान प्राप्त किया विकास प्रभाकर ने, जो कि SRM यूनिवर्सिटी के हैं। Do we see all the lanes? Yes. Lane number 6. Oh, do I see lane number 6 there or no? Lane number 6, Giant, are they there? That is disappointing for me. Lane 6 is not there. So there we go now. In lane 5, Giant, oh yeah, they're there. Lane 5, Giant University going strong here in the 4x100 meters. इस समय लेन नंबर 5 में जैन यूनिवर्सिटी के राज रेलेकर ने, नंबर 1 पर राज रेलेकर चलते हुए सफेद कैप पहने हुए आपके सामने स्क्रीन पर। लेन नंबर 5 पहले स्थान पर, लेन नंबर 4 अन्ना यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर, और लेन नंबर 3 में पंजाब यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर चलती हुई। क्या यहाँ पर जैन विश्वविद्यालय को स्वर्ण पदक मिलेगा, अन्ना विश्वविद्यालय को रजत पदक मिलेगा, और पंजाब यूनिवर्सिटी के सेजवाल कांस्य पदक दिलाएंगे? इसके साथ ही जैन यूनिवर्सिटी नंबर 1 स्वर्ण पदक, अन्ना यूनिवर्सिटी नंबर 2 रजत पदक, और पंजाब यूनिवर्सिटी नंबर 3 कांस्य पदक। So the lineup here as the 400 event itself signifies butterfly, back, breast and freestyle. The world record, Katinka Hosko, 426.36, August 16th at the Olympic Games at Rio de Janeiro. And we've got some big names here over the years. Stephanie Rice from Australia, Kirsty Coventry, the first of them, the butterfly, taking off very quickly on that particular one. Drawn in lane number 6 is Sadhvi Dhuri. Lane number 5 is Shrungi Bandekar. That's her favorite butterfly. She'll then take the back. After that, you've got lane number 7. Lane number 7 is Preeti V. But it's all happening at this point of time. In lane number 6, the favorite Sadhvi Dhuri, Shrungi Bandekar, Kalyani Saxena, as they take the first of the 50 meters. This is the 400 meters individual medley. And whom do we have in the front at this point of time? In lane number 5, Shrungi Bandekar, just behind her, close, 2 of them in 6, Sadhvi Dhuri and Kalyani Saxena. तो लेन नंबर 4, 5 और 6 तीनों बराबर चलती हुई, लेकिन जैन विश्वविद्यालय की श्रृंगी बांदेकर, जिन्होंने कल पदक जीता था, थोड़ा सा आगे चलती हुई। और ये महिलाओं की 400 मीटर मेडले है, जिसमें कि 3
प्रतिभागी 3 तैराक बराबर चलते हुए लेन नंबर 4, लेन नंबर 5, लेन नंबर 6 में। यहाँ जितने भी दर्शक हैं जो इस विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं उनका हौसला बढ़ाते हुए, लेकिन अब 3 बॉडी लेंथ जिसे कहा जाएगा, कल्याणी आगे निकल चुकी है। और ये देखिए कल्याणी किस तरीके से लेन जजेस देख रहे हैं और ये रिटर्न किया बिल्कुल फिश की तरह 15 मीटर तक, फिर अब बाहर निकल कर आई हैं। फ्री स्टाइल में कल्याणी सक्सेना इस समय काफ़ी आगे, और निश्चित तौर पर अब जोर लगाना होगा श्रृंगी बांदेकर को जो कि जैन विश्वविद्यालय की हैं कि क्या वो यहाँ पर उनको पकड़ सकती हैं। लेकिन उस समय कल्याणी सबसे आगे चलती हुई, कल्याणी नंबर 1 पर, और दूसरे स्थान पर इस समय चल रही हैं श्रृंगी बांदेकर जो कि जैन विश्वविद्यालय की है। कल्याणी सक्सेना वीर नर्मदा साउथ गुजरात विश्वविद्यालय की स्वर्ण पदक के बिल्कुल नज़दीक हैं, अब उनको कोई रोक नहीं सकता। और उसके साथ ही ये देखिए कल्याणी आपकी स्क्रीन के ऊपर, और टच किया स्वर्ण पदक पर, उन्होंने अधिकार कर लिया। दूसरे नंबर पर ये अब टच किया है, ये है श्रृंगी बांदेकर, और देखिए हवा में लाया अपने कैप को उतार कर। वॉलीबॉल भी एक बहुत इंटरेस्टिंग आज एक डिसिप्लिन रहा, और जिस तरीके से परफॉर्मेंस की बात करें, एसआरएम यूनिवर्सिटी का दबदबा कायम रहा। 2 गोल्ड, चाहे वो विमेन वॉलीबॉल की बात करें या मेन वॉलीबॉल की बात करें, बहुत सराहनीय प्रदर्शन रहा। जी बिल्कुल, और एसआरएम के लिए ये गोल्ड इसलिए भी बहुत मायने रखता है क्योंकि पिछली बार जो भुवनेश्वर में खेलों का पहला संस्करण हुआ था, वो फाइनल मुकाबला एसआरएम हार गया था, और तभी से उसने सोच लिया था कि इस बार जो है वो एक कदम और आगे जाना और मेडल का रंग बदलना, जो उन्होंने आज करके दिखाया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है महावीर। और नजर डालते हैं क्या कुछ वॉलीबॉल में आज दिन भर में रहा, विमेन वॉलीबॉल में। जॉर्ज 7-2 से सर्विस करते हुए अपनी टीम के लिए। मुकेश कुमार ने उठा, लेकिन नेट पे टकराई जरूर थी, लेकिन अंपायर का इशारा। 23-16 से आगे महात्मा गांधी। दूसरे सेट में केवल 2 अंकों से दूर जीत के लिए। यहाँ पर ये जो स्मैश किया था उसको डाउन नहीं रख सके, बैकलाइन से बाहर गया। अच्छी खासी, और ये दूसरा सेट भी इस सर्विस के साथ गया है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के पक्ष में। अनुदेवी सर्विस के लिए तैयार। क्रूशियल पॉइंट है ये। ओ, इस बार कामयाबी नहीं मिली प्लेसमेंट में। एक मौका और। ब्लॉक करके हाथ से लगी, और अब अनुदेवी सर्विस के लिए तैयार। क्या ये आखिरी अंक होगा? नहीं, अभी और इंतजार करना पड़ेगा महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी को। जब गैप रहता है तो पोजीशन आपकी ये बोलती है कि आप गैप के बीच में अपनी पोजीशन लें और डिफेंस करें। प्लेसमेंट यहां पर आसानी से आना मैथ्यूज ने तीसरे सेट को अपने नाम करके 2-1 की बढ़त ले ली है। चौथे सेट की शुरुआत, और शॉर्ट बॉल के जरिए। स्मृति, कुरुक्षेत्र को थोड़ी बहुत मायूसी वॉलीबॉल में हुई थी, पिछली बार वो चैंपियन थी, इस बार उसे ब्रॉन्ज मेडल का मैच खेलना पड़ा। लेकिन बास्केटबॉल में कुरुक्षेत्र की टीम बहुत अच्छा कर रही है, उसने अच्छी टीमें, यहाँ तक कि एसआरएम चेन्नई की और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की टीमों को भी हराया है। फुल कोर्ट प्रेस खेल रही है मुंबई की टीम। दूसरे क्वार्टर से यहां एक बेहतरीन मौका, लेअप, फिनिश बढ़िया। वेल डन Salman. Yeah, about to say, my man Salman, well done. He certainly has speed. Once again, a turnover. Can they get another 2?
Had a great opportunity. Number 9, Sheikh Faiz, missed out what should have been an easy layup and might have actually nearly tied the score again. टसल यहाँ पे चल रही है चारू। अगर आप ध्यान से देखो तो अभी से फुल प्रेस खेल रही है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की टीम, यानी हर खिलाड़ी के पीछे उनका एक खिलाड़ी मौजूद है और ये फुल कोर्ट प्रेस का प्रेशर ही माफ कीजिएगा दूसरे क्वार्टर में थोड़ा सा धकेल गया पीछे यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र को। Again, was that a foul? No, traveling, okay. So University of Mumbai survived yet another drive by the Kurukshetra boys. I must say the two big boys for Kurukshetra have done a lot of damage, particularly number 13, Rahul Jakhar, who had, 15 points in the first half. And they've been very difficult to stop offensively. हाईएस्ट स्कोरर मुंबई के, ध्यान रखिएगा कप्तान है उनके एरन मोंटेरियो। हैरान था कि विसल नहीं बजी, वहां पे पैर पे बॉल लग गई थी और अब शायद इनबाउंड करेगी। Across the paint. You're right though, Kurukshetra need to reorganize, rethink. Oh, brilliant. 3 का तीर लगाया है यहाँ पे। 3 पॉइंटर ऐसी स्टेज में राहत तो जरूर मिली होगी। नॉर्थ इंडिया में गर्मी बहुत है, लेकिन इस 3 पॉइंटर से ठंडक तो पहुंची होगी इनके सपोर्टर्स को। Sukoon. Here we go. Can you reply? Yes, you can. Well done, Mumbai. Number 14 for them. Prabhat Das pulls off a rare 3-pointer. क्या बात है, जिस तरीके से बॉल गई क्लीनली उसे कहते हैं छपाक। कुरुक्षेत्र के लिए आसान होना चाहिए। बहुत आसान सा शॉट मिस किया, एक और मिस राहुल जाखड़ का। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच था और जैसा कि आपने बहुत अभी हमारा डिस्कशन भी चल रहा था कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा का आज तमाम मैचेस थे, बट ये मैच उसका काफी इंटरेस्टिंग रहा है काफी। और एक नजर डालते हैं कि मेडल टैली इस समय क्या कह रही है, क्योंकि चौथे दिन का खेल खत्म हो गया है। धीरे धीरे जो अब टीमें हैं वो ज्यादा हरकतें वहां पर देखने को मिल रही हैं। खासकर अगर हम पूल की बात करें तो मेडल टैली ये साफ बताएगी कि जो जैन यूनिवर्सिटी है, जो कि एक होस्ट यूनिवर्सिटी है, और खासकर में जो उनके एक खिलाड़ी हैं शिव श्रीधर, जिन्होंने खुद 4 मेडल जीते हैं, फिर भांडेकर जो कि उनकी फीमेल एथलीट है, उन्होंने 2 मेडल जीते हैं, तो 6 गोल्ड मेडल तो जैन यूनिवर्सिटी ने अपने 2 खिलाड़ियों से जीत ले। और इसीलिए अगर आप देखें कि जैन यूनिवर्सिटी के जो मेडल टैली है इस समय टोटल 8 मेडल उसके पास है। और फिर सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी 14 मेडल्स हैं, गोल्ड इनके पास 4 हैं, सिल्वर 5 और 5 ब्रोंज मेडल हैं। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई तीसरे पायदान पे है, टोटल 6 मेडल हैं, 4 गोल्ड मेडल ये जीत चुकी हैं। जी, पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी अभी तक टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। और अगर हम बाकी के यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो पंजाबी यूनिवर्सिटी के भी टोटल 5 मेडल हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो कि थोड़ी बहुत अपने परफॉर्मेंस से मायूसी हुई, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी रही है ये। और वहीं चौधरी चरण सिंह मेरठ यूनिवर्सिटी के भी 2 गोल्ड हैं, टोटल 2 मेडल्स हैं। और एमडी यूनिवर्सिटी ने भी टॉप 10 में अभी तक अपनी जगह बरकरार मुझे लगता है पंजाबी यूनिवर्सिटी और सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी जो पिछले साल के विनर्स टॉप 3 विनर्स रहे हैं, मुझे लगता है टॉप 10 में ये टीमें हैं और अच्छा खासा परफॉर्म करें। अभी तो चौथा दिन ही है, आगे तो बहुत कुछ इसमें आप एक कुरुक्षेत्र का नाम जरूर जुड़ते हुए देखेंगे, क्योंकि अभी जो पूल और वेट लिफ्टिंग के मेडल्स जो हैं वो जिन टीमों ने अच्छा किया, जिन यूनिवर्सिटीज ने, क्योंकि पूल में जैन ने बहुत अच्छा किया है और वेट लिफ्टिंग में सावित्रीबाई फुले ने बहुत अच्छा किया, तो वो 2 नंबर 1 और नंबर 2 पे है। और ये हमारे कल के अट्रैक्शंस हैं। आर्चरी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, रेसलिंग, स्विमिंग, शूटिंग, टेनिस, ये सब कुछ सारा लाइव एक्शन आप कल देख सकते हैं हमारे साथ और सीधा आप तक प्रसारण पहुंच रहा है। सारा हम एनालिसिस कर रहे हैं और हाइलाइट्स लगातार आपको डेली शाम 6 बजे हम पहुंचाएंगे। जी, तो कल भी आप हमारे साथ इसी समय जुड़िए और तमाम अपडेट्स लेकर हम आपके सामने हाजिर रहेंगे। नमस्कार। तो मंच तैयार है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण यहां बेंगलुरु में होने जा रहा है और पहला संस्करण ओडिशा में हुआ था, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने पहला स्थान हासिल किया था। इस बार ये देखने वाली बात होगी क्या कोई पंजाब